चलो वी विल स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद क्वेश्चंस। हाँ, तो कल के जो फॉर्मूलाज हैं वो रिकॉल कर लेना आप लोगों को। Today's class is going to be primarily questions. So we will start with the CBSE 2025 question. ठीक है, can you guys note down the question please quickly? फटाफट। Two convex lenses A and B. Two convex lenses A and B. Each of focal length 10 centimeter. Two convex lenses A and B. Each of focal length 10 centimeter. Are mounted on an optical bench. Are mounted on an optical bench at 50 centimeter 50 and 70 centimeter respectively. Two convex lenses A and B, each of focal length 10 centimeter, are mounted on an optical bench at 50 centimeter and 70 centimeter respectively. Full stop. An object is mounted at 20 centimeter. Full stop. Find nature and position of final image formed by the combination. Find nature and position of the final image formed by the combination. ठीक है। सो अगेन यहाँ पे हमें ध्यान का देना है कि ऑप्टिकल बेंच क्या होता है। 0 सेंटीमीटर से लेके, इट्स ए लॉन्ग बेंच जिसमें 0 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक की मार्किंग होती है। आप लोग ने अपने लैब में शायद देखा होगा या देखोगे, आई एम नॉट श्योर। दिस लाइक ऑप्टिकल बेंच। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर मार्क, 20 सेंटीमीटर मार्क पे देयर इज एन ऑब्जेक्ट। देन एट 50 एंड 70 सेंटीमीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर समवेयर हियर, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज 50 सेंटीमीटर and 70 centimeter. Another convex lens, both are equal focal length. इन दोनों के ही जो है f is equal to 10 centimeter. This is a setup. Okay. So saying find the nature and position of the final image by this combination. So the approach we have to take in these problems when there are one or more optical devices put up, right? The approach we will take, we will first forget about the second device. We will start with the first device, whether it's a mirror or lens, whatever. इसका image निकालेंगे. That image formed by this, let's say lens A, this is lens B. Image formed by lens A would act as an object for lens B, and then again lens B के लिए हम do the calculations and we'll see कि कहाँ पे अपनी इमेज आ रही है। तो बस फॉर्मूला क्या है, लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f, right? So formula is going to be same for both the lenses, but the values will be different. तो पहले देखते हैं स्टार्टिंग में हमारा, अगर इस लेंस को देखें फॉर लेंस A, what is u? This is 50 centimeter, this is 20 centimeter, guys. This minus 30 centimeter. Very good. Convex lens है, convex lens के लिए focal length is always positive. It's going to be plus 10 centimeter. So very easily with these two information we can figure out what is the V
for this lens. So we will do 1 by v as it is, minus 1 by minus 30, आप लोग साथ साथ कर सकते हो, इज इक्वल टू 1 बाय प्लस का 10. सो यहाँ से आपका 1 बाय v आ जाएगा, 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 30. सो v यहाँ से आ जाएगा मेरे ख्याल से 15 सेंटीमीटर, राइट. v 15 आया, लेकिन v देखो ये फॉर्मूला में जब भी हम ये वैल्यूज ले रहे हैं v, u और f जो भी है वो कहाँ से होता है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. दिस इज O1, दिस इज O2. सो ये जो v आया 15 सेंटीमीटर, ये ऑप्टिकल बेंच पर्सपेक्टिव से नहीं है. दिस v इज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द फर्स्ट लेंस एंड दिस इज प्लस. सो प्लस मतलब क्या हुआ, इमेज इसकी यहां से 15 सेंटीमीटर दूर होगी. इसका मतलब ये somewhere here you will have a image. This distance will be 15 centimeter, guys. Now our story will start for lens B. Now for lens B, let's write the values. देखो लेंस B, अभी लेंस B के लिए U क्या लिखना है, माइनस में ये हो गया 60 माइनस 5. F इसका भी प्लस 10 है, दोनों का प्लस 10 दिया हुआ था, इसका भी प्लस 10 है. अब हम स्केल लगाएंगे 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F. तो यहाँ पे 1 बाई V हमको निकालना है, माइनस 1 बाय माइनस 5 इज इक्वल टू 1 बाय 10. यहाँ से 1 बाय V आप लोग का आ जाएगा 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 5. दिस विल बी अगेन, आपने एलसीएम लिया 1 माइनस 2, V इज इक्वल टू माइनस का 10. द जॉब इज नॉट ओवर, वी हैव टू स्टिल इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन, राइट. माइनस 10 सेंटीमीटर, तो ये आया है इस O2 से ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस B. O2 से माइनस 10 हमें इधर आना, मतलब माइनस मीन्स वी हैव टू ट्रैवल टुवर्ड्स द लेफ्ट, नेगेटिव. सो माइनस 10 आपको आना है. तो ये 70 में है, ये 70 में, इससे माइनस 10 इधर आओगे आप, तो कहीं यहाँ पे आपको इमेज दिखाई देगी इस तरीके से. एक्चुअली ये वर्चुअल इमेज होगी, टू बी ऑनेस्ट. ये यहाँ पे आपको इमेज दिखाई देगी. दिस विल बी, दिस डिस्टेंस इज माइनस 10. नाउ दिस वाज माउंटेड एट 70 एंड यहाँ से हम माइनस 10 इधर आ गए, मतलब वी आर एट 60. सो द आंसर यू हैव टू राइट फाइनल इमेज will be at 60 centimeter position on the bench. Now why I assume this will be like this of virtual image, वहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस मैं लगा रहा हूँ. इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ क्या है इसकी, 10 सेंटीमीटर. तो U कितना आया था हमारा, माइनस 5. दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट बना है फॉर दिस लेंस, इट इज केप्ट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ दिस लेंस. एंड इन दिस केस कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट. अभी ये उल्टी क्यों दिख रही है, बिकॉज इसको जो मिला है वही उल्टा है. It has started with a ulta object, so it will create a ulta image. For this lens perspective, this is still a erect image because this was the object it started with. Okay, so your position, इसका आंसर हो गया 60 centimeter. Nature of the image would be virtual because final image is virtual. But it is a virtual image, but it is inverted. Understand? कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिखूँ. नेचर ऑफ द इमेज में, नेचर इमेज, इट इज वर्चुअल प्लस इन्वर्टेड. इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू
ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. इट इज नॉट इन्वर्टेड, क्योंकि आप वर्चुअल इन्वर्टेड लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप. एज इट इज कि वर्चुअल तो हमेशा इरेक्ट होता है, बट यहां पे क्या लिख रहे हैं हम, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो दिस वाज 2025 क्वेश्चन लास्ट ईयर. अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं था, बट अगर हमें मैग्निफिकेशन निकालना होता, क्योंकि आपको भी हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे तब भी एक कॉन्सेप्ट पीछे आएगा, दो लेंस रहेंगे. अगर पूछा गया था कि मैग्निफिकेशन निकालो, तो अब जब भी दो ऑप्टिकल डिवाइसेस या मोर देन वन ऑप्टिकल डिवाइसेस आर इन पिक्चर ना, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जाता है m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू वट एवर. सो यू डू मैग्निफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड देन यू मल्टीप्लाई. तो अब अगर मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है इस केस में, तो मुझे दो मैग्निफिकेशन निकालने पड़ेंगे. एक बार इसका निकालना पड़ेगा ए का, एक बार इसका निकालना पड़ेगा बी का. ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ लिया तो कैसे करोगे. तो मैग्निफिकेशन निकालने का फॉर्मूला लेंस में होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर 10th ग्रेड का ही फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू होता है v बाई यू. इसमें माइनस नहीं होता, मिरर के फॉर्मूला में माइनस भी होता है, यहाँ पे माइनस नहीं. तो अगर आप एम ए निकालोगे, मैग्निफिकेशन ऑफ ए, दैट विल बी उसका v और उसका u. तो v कितना आया था उसका 15 और u कितना था उसके लिए -30, राइट. तो ये आ गया था -1/2 विद द साइन. इसी तरीके से अगर हम मैग्निफिकेशन ऑफ b निकालते तो उसका आता v बाई यू. उसके लिए u था -5 और v आया था -10. तो ये आया था एग्जैक्टली 2. तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन ma इंटू एम बी -1/2 पहले वाले का इंटू 2 दूसरे वाले का, तो ये आ गया -1. इसीलिए इमेज वर्चुअल थी बट इन्वर्टेड, बिकॉज इट इज फाइनल मैग्निफिकेशन इज माइनस. फाइनल मैग्निफिकेशन इज माइनस, इट हैज टू बी इन्वर्टेड इमेज. वर्चुअल क्यों है? क्योंकि फाइनल इमेज जो बनी है वो वर्चुअल बनी है. और आपको याद रहना चाहिए कि -1 का मतलब ये है कि इट इज एक्चुअली सेम साइज एज ऑब्जेक्ट. साइज वाइज इट इज एकदम सेम, बिकॉज वन वैल्यू इज इक्वल. Okay, so this is how we will tackle the problems of combination of lens. Combination of lens. कुछ नहीं करना है, पहले एक बार लगाना है फॉर्मूला, उसका जो इमेज होगा और दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट. दूसरे अगर एक और होता तो वी वुड हैव गॉन लाइक दिस. वैसे आपको 2 से ऊपर नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट इन बोर्ड्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. This is a 2019 question. A beam of light, इसमें मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा because if I draw the diagram then question will be very obvious. A beam of light converges. A beam of light converges at a point P. A beam of light converges at a point P. Full stop. Now a convex lens is placed in path. Now a convex lens is placed in path of convergent beam. Now a convex lens is placed in path of convergent beam at 15 centimeter from point P. मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं फिर से. A beam of light converges at a point P. Now a convex lens is placed in path of convergent beam at 15 centimeter from point P. Full stop. At what point does the beam converge? At what point does the beam converge if convex lens
has a focal length 10 centimeter. At what point does the beam converge if the convex lens has a focal length 10 centimeter? तो पहले इसमें the question in this question diagram was not given. So first challenge was to comprehend this scenario and draw the diagram. So just try to understand line by line. A beam of light converges at a point P. एक converging beam है, वही converge करेगी, and that is converging at a certain point. So let's just draw a guiding line. ठीक है? So a beam of light, converging beam है. It is converging at a point, right? So बना लिया हमने converging beam at a point P. Now a convex lens is placed in path of convergent beam at 15 centimeter from point P. Point P, right? यहाँ से 15 centimeter in the path of, तो 15 centimeter आप इधर नहीं जाओगे, क्यों? फिर तो path में आओगे नहीं ना, इसके path में डालना है. तो basically 15 centimeter this side you are putting up a convex lens. So you will put a convex lens here. This is 15 right guys. So अब यहाँ पे हम इसको actually दिखा सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा बनाना है यहाँ पे. This will be a dotted, means if this lens was not there they would have converged at. This is the second line. Okay, understood? At what point does the beam converge? Now with this lens, at what point does the beam converge? The focal length is given. Focal length of this is given as 10 centimeter, right? तो आप जानते हो कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस होता है. सो इट विल कन्वर्ज इवन फर्दर. सो इट विल कन्वर्ज एक्चुअली लाइक दिस. रिफ्रैक्ट हो जाएगी, बीम रिफ्रैक्ट हो जाएगी. सो अपने को यहां पे इसकी पी की इमेज बन जाएगी. लेट्स से दिस पोजीशन इज आई. So we have to find out this position. Obviously we can find this position from the lens or from point P, whatever we want to. This is given as 15 centimeter and focal length. Is the scenario clear? Right? Comprehending this problem is the only चाहिए. अब मुझे बताओ, लगाना अपने को वही फॉर्मूला है 1/v. इतना तो आप लोग समझ गए होंगे यार कि ये लगाना यही है. F तो क्लियरली दिख रहा है. ये जो 15 सेंटीमीटर है ये v है कि u है? यस. तो अगर ये लेंस नहीं होता तो दे वुड हैव कन्वर्ज्ड हियर. सो इट इज काइंड ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. फर्स्ट क्लास डेफिनेशन बताई थी, राइट? बिफोर ऑप्टिकल फिनोमिना वेयर द beam of light appears to converge, that is a virtual object. So this point P will act as a virtual object for this lens. लेकिन यहाँ पे u को हमको क्या लेना है? +15 या -15? +15, क्योंकि ये हमारा इस साइड है. और वैसे भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केसेस में जनरली u जो होता है पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे u इज इक्वल टू प्लस का 15 सेंटीमीटर. ये सबको समझ में आ रहा है? फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव होती है +10 सेंटीमीटर. अब आप के पास सब कुछ है, आप फॉर्मूला लगाइए और निकाल लीजिए. क्या आ रहा है यहाँ पे भी? 6 सेंटीमीटर प्लस में आया होगा. सो वी कैन आंसर इट 2 ways. सी एक चीज और भी है, बोर्ड में क्वेश्चन में ध्यान रखना, वहां पे ऑप्शंस तो होते नहीं है. यू हैव टू आंसर it properly in a statement, right? So you cannot just write v is equal to +6 done, आगे next question में चले गए. आपको लिखना पड़ेगा कि the beam would converge, either you can say 6 centimeter from lens or you can say 15 minus 6 which is 9 centimeter from point P. You cannot just leave the answer here.
You can say the beam would converge 6 centimeter from the lens now, or better उन्होंने point P का reference दिया है, तो better would be you answer it from the reference point P. Point P से 9 centimeter on the diagram बनाओगे आप तो ठीक है, आपको लेफ्ट राइट बताने की जरूरत नहीं है, आप बस डायग्राम में दिखा दो कि पॉइंट आई इज इन पोजीशन, इट इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन वैसे तो यार जेई मेंस का है, लेकिन डोंट टेक इट कि यार ये मेंस का है, कंपटीशन का है, जो भी है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बोर्ड में भी. जो अभी हमने ऑप्टिकल बेंच वाला क्वेश्चन किया उससे ज्यादा सिंपल ही बोलूंगा. टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ, ये क्वेश्चन आप लोग करने वाले हो, ठीक है. टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter each. Two convex lenses of focal length 20 centimeter each are placed coaxially with a separation of 60 centimeter. 60. I'll repeat. Two convex lenses of focal length 20 centimeter each are placed coaxially with a separation of 60 centimeter. The image of a distant object formed by the combination is at fill in the blanks centimeter from first lens. You have to fill in the blanks for this. ठीक है. The image of the distant object formed by the combination is at dash centimeter from the first lens. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है क्या, u इज इंफिनिटी. For the first lens. Yes, from the first one. 100. Your answer should be 100.
this 100, right? So same process, guys. First we will do UVF formula for the first lens, and the image formed by that will be object for the next lens. That's it. So आपका जो फाइनल V आएगा वो 40 आएगा, राइट? फाइनल जो V आएगा वो 40 आएगा, और वो 60 उसमें ऐड करने के बाद आपको 100 मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट लेंस से पूछा गया है, राइट? सो कुछ सिनेरियो इस तरीके का बन रहा होगा. This is your first lens, and at a 60 centimeter distance there is another lens. This is a common principal axis. So distance to object है, right? तो यहाँ से UVF का फॉर्मूला लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो वो सीधा फोकस पे आती हैं. तो यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज जो बनेगी वो इसके फोकस पे बनेगी, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा. फोकल लेंथ इज 10 ना, 20, सो 20 होगा ये. तो ये सीधा सीधा 20 आ गया. अभी ये 20 है, ये टोटल 60 था, ये हो गया 40. दिस विल बी 40 बिकॉज दिस वाज 60. तो 40, तो u इज इक्वल टू माइनस 40, f इज इक्वल टू प्लस 20. यहाँ से आप वैसे भी देख लो, इसको भी हम वैसे कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं. अगर 40 देखो तो क्या हुआ, 2f, तो 2f का फिर 2f बनता है ऑन द अदर साइड. तो ये इधर 40 है तो ये इधर 40 बनेगा. आप करके भी देख सकते हो फॉर्मूला से, 1/v माइनस 1/u से करोगे तब भी आपको मिल जाएगा आंसर. यहाँ पे v इज इक्वल टू, लेकिन प्लस का इस बार आपको 40 आएगा. इसका मतलब फाइनल इमेज वुड बी हियर, विच इज प्लस का 40. So from the first lens it will be 60 plus 40 is 100 centimeters. Okay. So this is another question. This is also again a question from JEE Mains, but again बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी. A point object O is placed. A point object O is placed in front of. A point object O is placed in front of two thin symmetrical coaxial convex lenses. Two thin symmetrical coaxial convex lenses L1 and L2 with focal length 24 centimeter and 9 centimeter. Focal length 24 centimeter and 9 centimeter respectively. I'll repeat the statement. A point object O is placed in front of two thin symmetrical coaxial convex lenses L1 and L2 with focal length 24 centimeter and 9 centimeter respectively. The distance between the two lenses is 10 centimeter. The distance between the two lenses is 10 centimeter, and the object is placed 6 centimeter from L1. Object is placed 6 centimeter from L1. The distance between the image and object is. The distance between the final image and the object is dash centimeter. Distance between final image and object is dash. So this is a scenario. आप लोग करना शुरू कर सकते हो जिनको क्लियर हो गया है. जिनको नहीं क्लियर हुआ उनको मैं बता देता हूँ. ये इस तरह का सिनेरियो है. आपके पास दो लेंसेज है डियर, L1 एंड L2.
एंड दे आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे देयर इज एन ऑब्जेक्ट केप्ट फ्रॉम L1। इनका फोकल लेंथ L1 का और L2 का फोकल लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है। What we have to do? We have to find the distance between the object and the final image. आपको फर्स्ट टाइम लगाना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जो लोग नहीं कर पा रहे उनको हेल्प कर रहा हूं मैं इधर। 1/v 1/u। आई डोंट हैव द आंसर फॉर दिस वन, यू गाइस टेल मी। You better not, huh? Okay. No worries, we'll figure it out. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. 1/v हमको मालूम नहीं है। For the first lens, 1/u is minus 6 is equal to 1/f. F is 24 plus का. So if you see here, 1/v would be rather 1/24 minus 1/6. Very difficult for me to do this. Minus 3/24 to minus 8. V is equal to minus 8 from this. Minus 8 from this. So मतलब कहाँ होगा? इधर कहीं माइनस का आया है तो यहाँ पे कहीं होगा 6 से आगे। दिस इज द इमेज फॉर द फर्स्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर रखा हुआ है और फोकल लेंथ 24 है, इट इज बिटवीन, तो दिस इज एक्सेप्टेबल। अब इस फॉर द सेकेंड लेंस दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो दिस इज 8 and 10, 18. So for the second lens u will be minus 18. F is 9 centimeter. So again 1/v plus का 1/18 is equal to 1/9. हाँ, तो माइनस 1/8 सॉरी प्लस 1/18। V इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। पूछा क्या कहते हैं? सो 18 फ्रॉम प्लस में इधर इससे 18 सेंटीमीटर ऑन दिस साइड, सो समवेयर हियर। सो दिस इज 18। सो 18 और 10 28 और 6 34 is the answer. ओके, सो ध्यान ये रखना है जो पूछा गया है वो देखना। पूछा गया कि ऑब्जेक्ट और इमेज, तो ऑब्जेक्ट यहां से 6 सेंटीमीटर है, ये बंदा इधर से 18 सेंटीमीटर है, तो 18 इधर लेना है, 10 की डिस्टेंस है और 6 ही ऐड करना है। टोटल डिस्टेंस हमको निकाल के देना है, दैट इज 34 सेंटीमीटर। क्लियर? आप देख रहे हो प्रोसेस सब में सेम है। पहले बार लगाओ v/vu फॉर्मूला, v निकालो एंड देन यू कैलकुलेट u, एंड u निकालने के बाद फिर से वही फॉर्मूला, फाइनल v निकालो। फिर जो पूछा गया उस पर ध्यान दो। v इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, सो जो पूछा गया उस पर जरूर ध्यान देना है कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं कि सॉट आफ्टर सिनेरियो है इन बोर्ड एग्जाम्स, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, नो एग्जाम, सॉरी। तो ये एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है जो कि आप बोल सकते हो टेम्पलेट क्वेश्चन, जो आपको आना चाहिए टेक्निक करने के लिए। अगर आपको नई टेक्निक पता है इसकी तो आप उसमें इसको कर नहीं पाओगे नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। नॉट टू से इस ये क्वेश्चन जो है ये जेईई मेंस बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड्स सारे उसमें आ चुका है, तो क्वेश्चन तो अच्छा है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, a convex lens of focal length 20 centimeter is placed in front of a convex mirror. A convex lens of focal length 20 centimeter is placed in front of a convex mirror with principal axis coinciding with each other. With principal axis coinciding with each other. Full stop. The distance between lens and mirror is 10 centimeter. The distance between lens and the mirror is 10 centimeter. Full stop. Point object is placed. A point object is placed on principal axis at a distance 60 centimeter from convex lens. At a distance 60 centimeter from convex lens. 60 centimeter, guys. 60 from convex lens. Full stop. The image formed by the combination. The image formed by the combination coincides with object. The image formed by combination coincides with the object. Focal length of the convex mirror is dash centimeter. Focal length of the convex mirror is to be found out. I'll just quickly repeat this question. Okay, na? A convex lens of focal length 20 centimeter 20 is placed in front of a convex mirror with the principal axis coinciding with each other. The distance between lens and mirror is 10 centimeter. A point object is placed on principal axis at a distance 60 centimeter from convex lens. The image formed by the combination coincides with object. Focal length of the convex mirror is. अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स काइंड ऑफ अ टेम्पलेट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके से है। हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस पर बना लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है और उसके सामने दूसरा रखा हुआ है एक कॉनकेव मिरर, राइट। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स में the distance is 10 centimeter. इसका फोकल लेंथ is 60 centimeter, right? इसका फोकल लेंथ is not given, that is actually the question mark. Point object is kept here, I guess 20 centimeter from the, अच्छा इसका अच्छा फोकल, अच्छा ठीक है, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ये जो है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है।
ना ये बोल रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन से जो इमेज बन रही है गाइस, थोड़ा ध्यान दो प्लीज, पे अटेंशन हियर। जब भी रे ऑप्टिक्स में आपको बोला जाए, जब भी बोला जाए कि इमेज, फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि किसी ना किसी डिवाइस ने तो काम ऐसा कुछ किया है, एंड नॉट किसी ना किसी डिवाइस, जो लास्ट आपकी ऑप्टिकल डिवाइस है उसने रेज को बाउंस बैक किया है। क्योंकि जब वो बाउंस बैक करेगा तो पूरा का पूरा जो मूवी है वो रिवर्स फॉर्म में चल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ हुआ ऐसा होगा कि यहां से एक रे चली होगी और रिफ्रैक्शन के बाद कुछ ऐसे इस पे गिरी होगी, राइट। अब ये इस पे नॉर्मली गिरी होगी, क्योंकि ये मिरर पे जब नॉर्मली गिरेगी तभी ये बाउंस बैक करेगी, राइट। और जब ये बाउंस बैक करेगी तो ये पूरा सिनेरियो रिवर्स होगा, देन दिस विल बी इंसिडेंट रे, दिस विल बी रिफ्रैक्टेड रे, एंड योर फाइनल इमेज विल बी फॉर्म हियर। इसको आप नॉर्मल UV-F के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो टाइम लगेगा अगर सॉल्व करोगे भी। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि भाई ये मिरर, दिस मिरर हैज टू बाउंस बैक दिस रे ऑफ लाइट, देन ओनली दिस विल कोइंसाइड विद द फाइनल। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इसको इस रे को नॉर्मली गिन रहा है इस मिरर पे, सो दिस शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स व्हाट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस ये एक और थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आना चाहिए कि अगर बाउंस बैक कर रही है ये रे, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, अगर ये मिरर ना होता यहाँ पे, इट शुड बी गोइंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस। अब इस पूरी कहानी को उल्टा समझो, इसका मतलब ये है अगर ये मिरर नहीं होता तो इसकी इमेज यहां बनती सी पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस में जो इमेज बनानी है, पहली इमेज, that should be formed on the center of curvature of this mirror. Is this clear? Lens should form the image at the center of curvature. तो अगर आप इसके लिए आप 1/v minus 1/u is equal to 1/f लगाओ जरा एक बार for the lens and try to figure out v 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। नाउ आप किस में इंटरेस्टेड हो? आप इंटरेस्टेड हो इस डिस्टेंस में, बिकॉज दिस डिस्टेंसेस आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बताओ, अब ये डिस्टेंस टोटल 30 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। अब अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसको कुछ v/u इसमें फॉर्मूले से करने का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ लाइन ही लिखनी पड़ेगी, आपको एक एक्सप्लेनेशन में लाइन लिखनी पड़ेगी इस तरीके से इन योर सॉल्यूशनिंग। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द इमेज, या ऐसे लिख लो, लेंस मस्ट फॉर्म इमेज at the center of curvature so that final image coincides with object। ये लाइन आपको अपने स्टेटमेंट में सॉल्यूशनिंग में डालनी पड़ेगी इफ इट इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, राइट। ये लाइन लिखने के बाद आप ये 1/v 1/u करोगे, उसको दिखाओगे डायग्राम में अपने कि ये 30 आया। डायग्राम में इसको डिस्प्ले करना भी जरूरी है कि when you say v is equal to 30 then this is 30 and then you will just say radius of curvature would be 30 minus 10 20, so focal length will be r/2 is 10, right? This is how you will put it up in presentation if it is a subjective question। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अब याद रहना चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, यू गाइस विल अटेम्प्ट दिस एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट।
एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी फाइनल इमेज कॉन्साइड कर रही है ऑब्जेक्ट से, तो जो लास्ट ऑप्टिकल डिवाइस है दैट इज जस्ट सिंपली बाउंसिंग बैक द इंसिडेंट रे. ठीक है. विद दिस we will attempt the next question. Okay guys, now you guys will do it for me. In this question, once we found the image distance of the lens, then can we use it as the object distance for the mirror? कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम. उससे भी आएगा आंसर, उससे भी आएगा. करके देखो. ये 20 होगा तो दैट यू विल बी प्लस 20. यू को प्लस 20 लेके 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आप लोग प्लीज लिखिए इसको. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 12 centimeter from a convex lens. An object is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens. Full stop. A convex mirror of focal length 15 centimeter. 15. A convex mirror of focal length 15 centimeter is placed on other side of the lens. At 8 centimeter from the lens. फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार. An object is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens. A convex mirror is of focal length 15 centimeter is placed on the other side of lens at 8 centimeter from the lens. Full stop. The image of object coincides with the object, which is the image of object coincides with the object itself. When convex mirror is removed, the image of object coincides with the object. Full stop के बाद when the convex mirror is removed, a real inverted image is formed. When the convex mirror is removed, a real inverted image is formed at a position. Full stop. The distance of image from object would be. This image जो बोल रहा है रियल इमेज विच विल फॉर्म. द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट वुड बी डैश सेंटीमीटर. देखो मैं आपको इसको यहाँ बता दूं डायग्राम में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. एक कॉन्वेक्स लेंस है यार हमारे पास, ठीक है. कॉन्वेक्स लेंस, ये गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पे एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है. 12 सेंटीमीटर पे हमने रखा है, 12 सेंटीमीटर पे रख दिया है एक ऑब्जेक्ट. दिस इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है. तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो इसकी इमेज है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर. ठीक, कुछ ऐसा हो रहा होगा, ये जा रहा होगा ऐसे, नॉर्मली गिर रहा होगा, टकरा के वापस वही चीज. ठीक है. सो दिस व्हेन द कॉन्वेक्स, अभी इसको हमने हटा दिया यहाँ से, कॉन्वेक्स इसको रिमूव कर दिया, तो जो इमेज बनती वो कहाँ बनती,
कुछ यहाँ बनती। वो पूछ रहे हैं कि ये जो इमेज रियल इन्वर्टेड इमेज जो यहाँ बनी है, रियल इन्वर्टेड इमेज वुड बी इमेज जो बनी नहीं है, बनती अगर ये मिरर ना होता, राइट। पूछ रहे हैं कि ये डिस्टेंस बताओ। आई बात समझ में? जब कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज इज कोइंसाइडिंग विद द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर को हटा दिया तो बोल रहे हैं कि इट वुड हैव फॉर्म्ड अ रियल इन्वर्टेड इमेज समवेयर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, नॉट द ओरिजिनल इमेज, बिकॉज वो तो वही बन रही है, तो 0 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। इस मिरर को हटाने के बाद गाइस इसमें उसमें कोई एंटर नहीं है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। बट मैं चाहता हूँ सब लोग करें इसको, ऐसा नहीं खाली कुछ स्टूडेंट्स कर ले और बाकी सब पीछे रह जाए। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। इफ दिस मिरर वॉज नॉट देयर, कोई इसका नहीं। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है इस टाइम +15 सेंटीमीटर। गाइस आपको यहां से ये जज कर लेना है कि ये अगर इस केस में जब ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली ये अगेन ये चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये डिस्टेंस पता चल गई, ये मालूम है। इसको भी हम ऐसे ओरली कर सकते हैं, कुछ इसमें कैलकुलेशन वैसे आप करने होगा तो कर सकते हो कैलकुलेशन, बट कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है इसमें, है कि नहीं? क्यों? ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकल लेंथ 15 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। दिस हैज टू बी सेंटर ऑफ कर्वेचर 30। सो 30 और 8 38, 38 और 12 50। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो इमेज यही बनी होती। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है गाइस? 4:30। अब थोड़ा क्वेश्चन का डोमेन चेंज करते हैं अपन। क्वेश्चन का डोमेन चेंज कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इमेजिंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे, हम करेंगे थोड़ा सा लेंस मेकर फॉर्मूला वाले क्वेश्चन। लेंस मेकर फॉर्मूला ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसमें भी काफी सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, कल ही किया था हमने। 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 टाइम्स 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। मतलब इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। यहाँ पे मीडियम जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंसेज मटेरियल इज μ2 and this is again μ1. So lens is kept in a refractive index medium μ1. Then this formula can give you the focal length of this lens. This is called lens maker formula. ठीक है, जरा इस पे आते हैं अभी हम लोग। ओके, क्वेश्चन जरा राइट डाउन करो आप लोग। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस, the focal length of a concave lens of refractive index 1.5. The focal length of a concave lens of refractive index 1.5 is 20 centimeter in air. 20 centimeter in air. It is completely immersed in water. It is
completely immersed in water of refractive index 4/3. It is completely immersed in water of refractive index 4/3. Calculate its focal length in water. Calculate its focal length in water. तो क्या कहानी है? कहानी ये है कि हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है और इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर इन एयर, जब इसको एयर में रखा हुआ है। ठीक, इसको हमने डाल दिया कहाँ? कंप्लीटली इमर्स कर दिया वाटर में, कंप्लीटली इमर्स कर दिया वाटर में, तो फोकल लेंथ चेंज होगी। क्यों? R1 R2 विल नॉट चेंज। किसी लेंस को आप अगर किसी और मीडियम में डाल दोगे तो इसके कर्वेचर्स में तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन यहाँ जो वैल्यू है μ1 जब वो एयर में रखा है तो ये वैल्यू μ1 की है 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम इज 1, बट जब इसी को आप इमर्स कर दोगे यहाँ तो ये μ1 1 की जगह हो जाएगा 4/3। सो दैट इज द आइडिया। सो उसकी नई फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द न्यू फोकल लेंथ। तो पहले आप क्या कर, बहुत सारे तरीके हैं। आप ये भी कर सकते हो कि इसको एक कांस्टेंट ले लो और इसकी वैल्यू निकाल लो फ्रॉम द फर्स्ट, एंड इन द सेकंड वन यू कैन प्लग इन द सेम वैल्यू, या फिर दोनों इक्वेशंस को लिख के उसको डिवाइड कर लो। 80 सेंटीमीटर, आंसर वुड बी 80 सेंटीमीटर। दो तरीके हैं गाइस, या तो आप एक बार फोकल लेंथ लिखो जब वो एयर में है, μ2 μ1 पता है आपको, μ2 इज 1.5, μ1 इज 1 जब वो एयर में है। ये 1/r1 1/r2 ऐसे रहने दो, राइट। यहाँ पे फोकल लेंथ आपको गिवन है, वो लिख लो। फिर नया फोकल लेंथ लिखो फॉर वाटर, तो यहाँ पे μ2 तो 1.5 ही रहेगा क्योंकि लेंस का मटेरियल तभी 1.5 है। μ1 में आप डाल दोगे 4/3 नाउ, 4/3 बिकॉज नाउ सराउंडिंग एनवायरनमेंट इज वाटर। μ1 4/3, बाकी सब ऐसे एज इट इज रहेगा। उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 1/r1 1/r2 कैंसिल हो जाएगा, आपको f निकल के आ जाएगा। चलो कर लेते हैं इसको। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ दे कैन जस्ट फॉलो इट हियर। इन एयर इट वाज 20 सेंटीमीटर, राइट। सो वी कैन राइट इट एज, अच्छा फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज अ डाइवर्जेंट लेंस, सो इट विल बी नेगेटिव। सो 1/f मतलब 1/-20 इज इक्वल टू 1/-20 इज इक्वल टू μ2, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज 1.5 अपॉन μ1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 टाइम्स 1/r1 minus 1/r2. This is equation 1. Then the new focal length is 1/f dash. Yeah, f रहने दो because we have not used. You don't know this sign, so let it be. Do not, in ray optics we never plug in the sign of things we don't know. We don't know whether this lens will behave like a convex or concave. It can be anything, right? So just let it be. Is equal to μ2 is 1.5. अच्छा 1.5 को थोड़ा सा मैं ease of calculation के लिए 1.5 को मैं 3/2 लिख रहा हूँ यार, ठीक है, तो ease of calculation हो जाएगा। So this will be 3/2 upon μ1 which is 4/3 minus 1 times 1/r1 minus 1/, अब ये दो पार्ट सेम है, यू कैन डिवाइड। इफ आई डू दिस डिवीजन 1 डिवाइडेड बाय 2 गाइस, मैं इसमें से इक्वेशन डिवाइड कर रहा हूं, तो इधर क्या होगा देखो 1/-20 ये 1/f, तो इट विल फ्लिप, f will go up, on this side I will have f/20, and when you divide these two equations this will be knocked off completely. This is what 1.5 minus 1 which is 0.5 which is 1/2. So 1/2
फ्रॉम दिस साइड होल ओवर, ये क्या होगा देखो, इस वाले फैक्टर को जरा देखते हैं, 3/2 इंटू 3/4, so it is 9/8 and minus 1. 9/8 minus 1 is 1/8, right? 1/8. So this will be the factor here, 1/2 upon 1/8. तो यहां से आ जाएगा f/20 is equal to 1/2 into 8/1, right? तो 4. So f is equal to 80 centimeter. f is equal to 80 centimeter. yes. हाँ सॉरी, इधर से भी ये माइनस आया ना अपने पास, यहाँ -20 था, ये -20 पे भूल गया, सॉरी, यहाँ पे माइनस था, स्टार्ट माइनस, ठीक है. सो आई हैव फॉलो दिस अप्रोच. अगर आपको कैलकुलेशन में ये इजी लगता है कि आप इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ प्लग इन कर दो तो भी चलेगा, राइट. ध्यान क्या रखना है कॉन्सेप्ट कि किसी भी लेंस को जब किसी दूसरे मीडियम में डिप करोगे आप, तो ये चीज आपकी चेंज नहीं होगी, कर्वेचर्स विल नॉट चेंज, राइट. ओनली दिस पार्ट कैन चेंज. एंड यहां पे देखो एक खास बात आपको बताना चाहूंगा कॉन्सेप्ट वाली. द नेचर ऑफ लेंस कैन चेंज. प्लीज पे अटेंशन गाइस. द नेचर ऑफ लेंस कैन चेंज हियर. इमेजिन करो कि अभी तो बाई चांस की बात है, ये 9/8 करके -1 आया, तो ये 1/8 प्लस का आया. अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा होता है इसका मीडियम का कि वो ग्लास से ज्यादा होता, मतलब 1.5 से ज्यादा होता, इसको आप डिप करते तो ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाता, क्योंकि वहां का जो फोकल लेंथ का माइनस है और जो यहां से फैक्टर से माइनस निकलता, वो दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं. सो व्हेन यू डिप अ लेंस, राइट, इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स whose refractive index is more than the lens का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो नेचर ऑफ लेंस विल चेंज. समझ रहे हो बात को? कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसकी कुछ फोकल लेंथ है लेट्स से 20 सेंटीमीटर. अभी ये कॉन्वेक्स लेंस है, मान लो इसको आप डिप कर दो किसी लिक्विड में. When you dip it in a liquid whose refractive index happens to be, let's say, 2.0, whose refractive index happens to be 2.0, which is more than this, तो अभी क्या हो जाएगा, इसका नेचर चेंज हो जाएगा. दिस विल नॉट एक्ट लाइक a convex lens, this will rather act like a concave lens. और आप इसको कैलकुलेशन करके देख भी सकते हो, μ2/μ1 जब डालोगे तो वो रिवर्स, क्योंकि देखो ये लेंस के फॉर्मूला में you have this factor μ2/μ1, refractive index of lens का material upon refractive index of surrounding material, -1 किया. तो as long as this factor is more than 1, then the nature will not change. But if this factor becomes less than 1, then there will be a negative sign and that will make the focal length reverse sign, right? तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. If you dip a lens, एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि if you want, this is a convex lens and if you want this to behave like a concave lens, what will you do? They just ask this kind of question. So you can just say you can dip it in a liquid of refractive index which is higher than the refractive index of lens. Okay? तो एक ये वैरायटी थी क्वेश्चन की लेंस मेकर की. अब एक दूसरी वैरायटी आपको करा रहा हूं लेंस मेकर. दिस इज अ CBSE 2020. The focal length of a equiconcave lens. The focal length of a equiconcave का मतलब होता है कि उसके R1 R2 सेम है. The focal length of a equiconcave lens is 3/4 times of its radius of curvature. The focal length of an equiconcave lens is 3/4 times of its radius of
curvature. Full stop. Find the refractive index of material of lens. Find the refractive index of material of the lens. Full stop. Next question है उसी का extension. Under what condition this lens can behave like a converging lens? Under what conditions this lens can behave like a converging lens? ठीक है, तो पहला वाला पार्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं. The focal length of an equiconcave lens is 3/4 times radius of curvature. Full stop. Find refractive index of material of lens. Under what condition this lens can behave like a converging lens? I'll give you 2 minutes to attempt this. The radius of curvature of focus में relation 1/2 का रहता है या 3/4 का रहता है? नहीं, वो डियर तब होता है जब तुम्हारे समझो बात को, ये जो आपने पढ़ा है ना मिरर के केस में ऐसा होता है कि ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ फोकस, कहीं पे भी लेंस के लिए आपने नहीं पढ़ा होगा कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसका फोकस कहाँ होगा. भाई इसमें तो पहली बात समझो, बाई चांस की बात है, इक्वी कॉन्केव लेंस है, अगर ये R1 R2 अलग अलग कर्वेचर होंगे तो क्या है, बोलो किसका R1 का हाफ किसका हाफ. वो जो तुमने F और 2F को तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कंफ्यूज मत करो, समझ रहे हो, अगर वो कंफ्यूजन हो रहा है. मिरर के केस में होता है वो. हाँ, R1 एंड R2 का वैल्यू सेम है, द कर्वेचर से सेम. टू टाइम्स साइन भी तो ध्यान देखो, साइन ये कंसीडर साइन एज वेल. आंसर इसका 5/3. Yes, there was a hand going up. Yes. देखो ऐसे में आपको क्या एज्यूम करना सही रहता है, एरर, आई विल टेल यू एरर फ्री अप्रोच फॉर दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. ये है R1 और ये है R2, राइट. सी दे हैव सम साइन एंड दे हैव सम वैल्यू, राइट. सो ये कंफ्यूजन हटाने के लिए व्हाट यू डू इज R1 और R2 का वैल्यू कुछ आप x ले लो विदाउट साइन, मतलब इसका भी x है कर्वेचर, इसका भी x है. नाउ व्हाइल पुटिंग, नाउ दिस टेक दिस एज अ नोन वैल्यू, टेक दिस एज अ नोन वैल्यू एंड पुट विथ साइन. सो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू mu2 by mu1 minus 1 by R1 minus 1 by R2, right? This is your formula. अच्छा, ये बोल रहा है कि फोकल लेंथ इस बंदे की जो है वो 3/4 ऑफ x है, राइट. अच्छा, है तो कॉन्केव लेंस, तो फोकल लेंथ जो, अब ये x जो है हमारे लिए कोई नॉन पॉजिटिव वैल्यू है, x इज अ नॉन पॉजिटिव वैल्यू. सो इसका मतलब है मैं वैल्यू कॉन्केव लेंस है तो आई विल पुट माइनस साइन फ्रॉम माई साइड. नाउ x इज नो लॉन्गर अ
वेरिएबल आई हैव अज्यूम, ये एक टेक्निक बता रहा हूँ एरर फ्री जो आपको इजी रहेगी सॉल्व करने के लिए। तो यहां से आप जब डालोगे 1/f तो ये आ जाएगा -4/3x 1/f इज इक्वल टू, ये आपको निकालना है। ये एयर के रिस्पेक्ट में पूरा काम हो रहा है क्योंकि यहाँ कुछ मीडियम बोले नहीं, इसका मतलब एयर है, तो म्यू 1 हो गया -1, ठीक है। अब देखो 1/r1, 1/r1, r1 क्या होगा -x। इफ x इज अ नॉन पॉजिटिव वैल्यू गाइज, कर्वेचर की वैल्यू है, तो जो व्हेन वी पुट इट विद साइन, सो आई विल पुट r1 विद -x, so 1/-x, r2 is this side curvature, center of curvature will be this side, so plus, so it will be again minus के साथ x, क्योंकि माइनस साइन दे रहे वहां पे, and when you solve this you will get your answer. So whenever you have this kind of scenario कि you have to assume some value for some unknown, assume it a positive value and in the formula put the sign accordingly as if you know this, as if you know this value x. Okay, this will help you in not messing up the signs. So अभी आप देखोगे यहाँ माइनस माइनस अपने आप कैंसिल हो गए, एक्स एक्स कैंसिल हो गए, म्यू आपका पॉजिटिव में आएगा 5/3. Can you all confirm with this equation mu is coming as 5/3 पॉजिटिव में? That will be the answer. अब इसका नेक्स्ट पार्ट पूछा है, अंडर व्हाट कंडीशन दिस विल बिहेव लाइक ए कन्वर्जिंग लेंस। अभी कन्वर्जिंग लेंस मतलब इट हैज टू बिहेव लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस। सो अगर इसकी फोकल लेंथ को आपको माइनस से प्लस करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको एक ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में डालना पड़ेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। दैट मीन्स इफ यू डिप इट इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड whose refractive index is more than 5/3, then in that case this will start behaving like a convex lens. तो उस केस में क्या होगा, μ1/μ2/μ1. So μ2 is lens का refractive index, let's say 5/3. It is slightly less than 2, right? So I'll take a refractive index 2 of the liquid. अब इसको -1 करोगे आप तो there will be a minus sign coming out of this factor which will flip the sign of the original focal length. This will be a negative number. क्यों? क्योंकि this number is bigger than the numerator. Because of this, there will be a minus sign coming out of this formula, which will flip the sign of the original focal length, and the lens will change its nature. ठीक है? Okay. So we will keep it till this point today. Tomorrow we will be doing few more questions, and we'll start optical instruments. Okay. Okay.